हेलो एंड वेलकम। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी में है, या तो वो इंजीनियरिंग करते होंगे या वो अपने बीएससी कोर्स में होंगे। पर्टिकुलरली अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं विच इज़ एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो आपके बीएससी में एक कोर्स होता है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक कोर्स होता है विच इज़ अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में वो एक बुक रिकमेंड करते हैं विच इज़ this book, Differential Calculus by originally this is by two authors, चोपड़ा एंड कोचर। इसके बाद एक हमारे यहाँ कश्मीर के एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं अजीज़ुल अज़ीम सर, उन्होंने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया है, लाइक रोल्स थ्योरम का प्रूफ उन्होंने ऐड किया है। सो इट इज़ नाउ बाय थ्री ऑथर्स विच इज़ अज़ीम, चोपड़ा एंड कोचर। दिस इज़ रिकमेंडेड एज यू कैन सी हियर इन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। इसमें यूनिट फर्स्ट जो आपका है, इसमें एक कोर्स है, एक टॉपिक है आपके पास विच इज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ पर आपको तीन टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा, विच इज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद टोटल डिफरेंशियल्स के बारे में पूछा जाएगा, और फाइनली एक थ्योरम है, एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम है जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, विच इज़ आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। दिस बुक इज़ रिकमेंडेड बाय इन योर सिलेबस, इट इज़ एट सीरियल नंबर 3 दिस बुक। तो अगर आपके पास ये है, माई जॉब इज़ टू सॉल्व एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बुक एज आई कैन। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन की जहाँ तक बात है, तो आपकी 12th क्लास में आपने थोड़ा सा तो इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप तब करते हैं जब आपके पास कोई फंक्शन होगी, फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। बट यहाँ पर आपके कोर्स में आपसे पूछा जाएगा अबाउट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। नाउ व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स? लेट्स सपोज you have a quantity z. If this quantity z has a finite and unique value for a pair of two variables x and y. If this quantity z has a unique and finite value for a pair of values of x and y, then we say this z it is a function of variables x and y, and we write z is equal to f of x comma y, and we read it as z is a function of x and y. Now let's take some examples. For example, you can have a function z is equal to x square plus 3xy plus sine of x. Now this is a function of x and y. Now note here that the variables x and y, these are independent variables, but the variable z, it depends on both the variables x and y. If you vary x, the value of the z will change, and if you vary y, the value of the z will change. Now you have a function here, z is equal to x square plus 3xy plus sine of x. Now this is a function of two variables. Now in this case क्या होता है, you find partial derivatives. Now you can find differentiation of this function z is equal to x square plus 3xy plus sine of x, or more generally, if you have a function z is equal to f of x comma y, that means z is a function of two variables x and y. Now if let's suppose this function is a continuous function, that means z is a continuous function in two variables x and y. Now suppose x is constant. X is constant means you are not varying x. Only x can change here. So the variable here is x only. You are treating y as constant. Now if you differentiate that function will be a continuous function of x alone. Now if you differentiate that function with respect to x, so I can get this. I write this dz by dx, or I can write df by dx, or I can write fx, or I can write fx x comma y. Now these are the symbols which are used for the differentiation of the function z in the case you are treating y as constant and varying x alone. Now this is called partial derivative of z. Partial derivative of z
partial derivative of z with respect to x, more particularly this is called partial derivative of first order of z with respect to x. Now in this case क्या होता है, आप y को treat करेंगे as constant. Now similarly in another case, if you treat x as constant, you are treating x as constant and you vary only y. In that case the function will be a continuous function of variable y. In that case you can differentiate with respect to y. So if you are differentiating with respect to y, I can get derivative of z with respect to y. I can write it as derivative of f with respect to y. I can write it as fy, or I can write it as fyx comma. These are the symbols which are used for dz by dy. There are some other symbols, like we can have dx of fx comma y. In this case you can have dy of fx comma y. Now this is called partial derivative of z with respect to x, and this is called partial derivative of z with respect to variable y. Now these are two partial derivatives. These are these are partial derivatives of first order, of a function z which is a function of two variables. अब अगर आपके पास कोई भी function है, let's suppose you have this function z is equal to x square plus 3xy plus sine of x, and you are asked to find out the first order partial derivatives. That means you are asked to find out dz by dx and dz by dy. That means in the first case, if you are finding this dz by dx, that means you have to treat the variable y as constant. So dz by dx will be equal to d divided by dx of this whole function. That means x square plus 3xy plus sine of x. Now term wise differentiation hoga, so d divided by dx of x square plus d divided by dx of 3xy plus d divided by dx of sine of x. अब इन दिस केस यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ विद रिस्पेक्ट टू x जो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 2x प्लस, अब यहाँ पर आपको निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3xy विद रिस्पेक्ट टू x. जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग दिस वेरिएबल y एज कॉन्स्टेंट. सो ये बाहर आ जाएगा, तो y टाइम्स d डिवाइडेड बाई dx ऑफ 3x प्लस, और 3 भी बाहर आ जाएगा बिकॉज 3 इज ए कॉन्स्टेंट प्लस. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज कॉस ऑफ x. अब यहाँ पर होगा 2x प्लस 3y. Now what is differentiation of x with respect to x? That's equal to y. So multiplied by 1 plus cos of x, which will be further equal to 2x plus 3y plus cos of x. So in this way you find the partial derivative of z with respect to x. That means आपको याद रखना है, अगर आप partial derivative निकालते हैं किसी फंक्शन का with respect to x, जितने भी वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट होंगे x के अलावा सब वेरिएबल्स को आपको ट्रीट करना है एज कांस्टेंट. और जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो y के अलावा जितने भी वेरिएबल्स इसमें होंगे दोज विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट्स. नाउ सिमिलरली अगर आपके पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y, दैट मीन्स z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. लेट्स सपोज आपने पहले ही निकाल के रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो dz बाई dx और df बाई dy, ये आपने निकाल के रखे हैं. दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, z का विद रिस्पेक्ट टू y. ये आपने पहले ही निकाले हैं. नाउ dz बाई dx इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y, and dz by dy it will be a function of x and y.
अब इनको भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं फर्दर। दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब आप निकाल सकते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकाल सकते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर आपको निकालने होंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो मैं पहला सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ। अगर आपने इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास जो फंक्शन होगा सो इट विल बी डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया है डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। एक और बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब दूसरा आप निकाल सकते हैं इसी फंक्शन का, आप यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है z का, इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो आई कैन राइट d डिवाइडेड बाई डी वाई ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं डी टू जेड बाई डी वाई डी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन किया है z का। z जो आपके पास फंक्शन था, इसका सबसे पहले आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन की, सॉरी दिस इज डी एक्स। तो z जो आपके पास फंक्शन था, इसका आपने पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर जो रिजल्ट आपके पास आया है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है आपने विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अब आपके पास जो दूसरा पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है, इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास तीसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा d डिवाइडेड बाय डी वाई ऑफ, पहले x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, d डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ डी जेड बाई डी वाई, और इसको आप लिख सकते हैं डी टू जेड बाई डी एक्स डी वाई। Similarly, you can differentiate this function with respect to y. जब आप with respect to y इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सो ये बनेगा d डिवाइडेड बाई डी वाई ऑफ डी जेड बाई डी वाई, डी जेड बाई डी वाई। इसको आप लिखते हैं डी टू जेड बाई डी वाई टू। To sum up, if you have a function of two variables, z is equal to f of x comma y, that means z is a function of two variables x and y. Now in the first case you treated y as constant, और आपने डिफरेंशिएशन किया इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, और आपके पास जो डेरिवेटिव बना उसका आपने नाम रखा पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इट इज़ इसके लिए आपके पास कुछ सिंबल्स हैं। पहला तो सिंबल आपके पास है डी जेड बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स कमा वाई, या डी एक्स एफ ऑफ एक्स कमा वाई। दीज ऑल डिनोट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस, जब आप x को ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आपके पास बनेगा दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और उसको आप डिनोट करेंगे बाय डी जेड बाई डी वाई, डी एफ बाई डी वाई, एफ वाई एक्स कमा वाई, डी वाई एफ ऑफ एक्स कमा वाई। नाउ अब जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बने हैं, पहला तो पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास है डी जेड बाई डी एक्स, और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास है डी जेड बाई डी वाई। अब आप इनका फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, व्हाई? बिकॉज दीज टू first order derivatives, these two first order derivatives of z both will be functions of x and y। इनका भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिस तरह इस फंक्शन का किया था इसी तरह इन दोनों का भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डजंट मैटर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, जो आपके पास रिजल्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले मैंने इसका फंक्शन इस फंक्शन का किया, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो मेरे पास फंक्शन बना इट विल बी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। तो पहला पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास है डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी फंक्शन का जब आपने किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास फंक्शन जो आया दूसरा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया दैट इज डी टू जेड बाई डी एक्स डी वाई। और ये जो फंक्शन आपके पास है इसका जब आपने किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास फंक्शन जो आया दैट इज डी टू जेड बाई डी एक्स डी वाई, और
इसी फंक्शन का जब आपने किया, इसी डेरिवेटिव का जब आपने किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चौथा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास बना, दैट इज d2z बाई dy2। ये चार आपके पास है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और ये दोनों आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। दैट मीन्स इफ़ यू हैव अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, आप निकाल सकते हैं उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास 2 होंगे और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास 4 होंगे। और सिमिलरली यू कैन फर्दर गो ऑन। अब आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। आप इन चारों का कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और जो रिजल्ट आपके पास होगा दोज विल बी कॉल्ड थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। लेकिन वहाँ तक जाने की हमें ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपको जब पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। लेकिन जब आपको निकालना, अगर आपसे पूछा जाएगा थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, आई होप आप उसको निकाल सकते हैं। अब मैंने पहले ही आपको बोल रखा था, ये जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक, ये पूछी जाती है। आई विल स्टिक टू द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो इसमें एक कोर्स है, एक चैप्टर इसमें है ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। माय जॉब विल बी टू सॉल्व एज मेनी एग्जांपल्स एज आई कैन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें है पेज नंबर 12, इसमें यूनिट है ये 12th यूनिट। तो पेज नंबर 255 से ये स्टार्ट होगा और इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एक्सरसाइज जो इसमें है, तो एग्जांपल्स इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, नीचे मैंने आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, फाइंड dz बाई dx एंड dz बाई dy इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। सभी केसेस में आपको निकालने हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, कुछ सिंपल फंक्शंस आपके पास हैं। ऑफ कोर्स फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, इनमें निकालना है आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपके पास फंक्शन जो है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy। अब ये आपके पास फंक्शन एक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। निकालना क्या है, आपको निकालना है dz बाई dx एंड dz बाई dy। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग one partially with respect to x, we get this. So dz divided by dx आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स जो वेरिएबल, बाकी जो वेरिएबल्स इसमें होंगे, दोज विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो यहाँ पर भी आप टर्म वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे, बिकॉज बीच में ये 3 टर्म्स है, तो हर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। दैट मीन्स ऑल द अदर वेरिएबल्स विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स। तो आप लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई dx ऑफ, पहली टर्म जो आपके पास है x क्यूब, उसके बाद d डिवाइडेड बाई dx ऑफ जो दूसरी टर्म आपके पास है y क्यूब, माइनस d डिवाइडेड बाई dx ऑफ जो तीसरी टर्म इसमें है 3axy। Remember, you are differentiating this function partially with respect to x. तो पहला जो डिफरेंशिएशन, पहली जो टर्म आपके पास है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ d डिवाइडेड बाई dx ऑफ x पावर n किसके बराबर होता है, nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर d डिवाइडेड बाई dx ऑफ x क्यूब विल बी 3x स्क्वायर प्लस
d divided by dx of y cube. Now this term does not contain x, this contains only y, and you are treating y as constant because you are differentiating this function with respect to x. You are partially differentiating this function with respect to x. So differentiation of y cube will be 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे. अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कॉन्स्टेंट है 3, उसके बाद दूसरा कॉन्स्टेंट है y, और तीसरा कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपके पास है पहला कांस्टेंट आपके पास है 3, बाहर आ जाएगा. दूसरा कांस्टेंट आपके पास है a, ये भी बाहर आएगा. और तीसरा कांस्टेंट जो आपके पास है दैट इज़ y, ये भी बाहर आ जाएगा. और डिफरेंशिएशन होगा d डिवाइडेड बाई dx ऑफ x. Now this is equal to 3x square minus 3ay. Now what is differentiation of x with respect to x? That's equal to 1. So multiplied by 1. Now this whole thing is equal to 3x square minus 3ay. अब 3 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं या ये भी आंसर रख सकते हैं. So 3 कॉमन आएगा, बाहर आएगा x square minus ay. Now this will be the first partial derivative. That means dz by dx. अब इसके बाद इसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 partially with respect to y, we get this dz divided by dy. In this case we are differentiating partially with respect to y. Now dz divided by dy is term wise differentiation होगा, but with respect to y होगा dy of x cube plus d divided by dy of y cube minus d divided by dy of 3axy. तो यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वाई इट विल बी 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वाई एंड यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा 0 बिकॉज एक्स विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट. और सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा d डिवाइडेड बाई dy ऑफ वाई क्यूब इट विल बी 3y स्क्वायर माइनस. अब यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे. सबसे पहले कॉन्स्टेंट आपके पास है 3, उसके बाद आपके पास कॉन्स्टेंट है a, और उसके बाद जो तीसरा कॉन्स्टेंट आपके पास है दैट इज़ x बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. सो डिफरेंशिएशन जो होगा डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ y का. अब जो आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3ax. Now differentiation of y with respect to y it will be 1, और 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे it will be 3ax. अब आप 3 इसका कॉमन निकाल सकते हैं. So this will be 3y square minus ax. 3x. That completes the solution of first part.